Good afternoon, all. Today we are going to discuss and we are continuing to our accountancy series. Last time, actually, we have discussed regarding the disclosure of accounting standard, accounting policy. Or today, I am just coming with the concept of the accounting standard, which which is issued by the Institute of Chartered Accountant of India, and how accounting standards are made. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते कैसे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनने के लिए आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनता कैसे हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं। व्हाट आर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वाई एवरी वन वॉन्ट्स दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रूल्स, रेगुलेशन एंड डायरेक्शन that is issued by the Institute of Chartered Accountant of India. What is that? Rules, regulation and directives, which is issued by the Institute of Chartered Accountant of India. This is the rule. This is the rule, and this is the regulation. This is the regulation and this is the directives. These are issued by the Institute of Chartered Accountant of India. And why accounting standard? हमें accounting standard बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? The purpose of drafting or making accounting standard is basically to avoid the variance which arise because of following different accounting principle and following different accounting practices. तो इसमें accounting standard क्या करता है? Accounting standard play a vital role to remove this. Actually, it is also to maintain the uniformity amongst the diversified principle of accountancy. It is maintaining the accounts of books of account of the company in same format and following the same policies, so that it may be possible for somebody to someone to compare the various companies to take wise decision based on the financial statement of the companies. This is the purpose of making accounting standard. It should be clear to you very. And accounting standard, who made the accounting standard? Accounting standard बनाता कौन है, ये हमें पता होना चाहिए। accounting standard कौन बनाता है? accounting standard बनाता है, accounting standard issue तो करता है ICAI, यानी प्रीमियम बॉडी ऑफ अकाउंटेंसी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। Its headquarter in New Delhi, ITO. Institute of Chartered Accountant have a different body like Accounting Standard Board, but it is a totally independent body. Actually, it's not running under the advice of the Institute of Chartered Accountant. It is just body of the Institute of Chartered Accountant India. It is completely independent body, and it also comprises some members, very important like FICCI, SOCM, and accounting scholars. You may be the accounting scholar, you may go, if you are wise enough to just refer your something points and key points and your opinion to the accounting standard board. So accounting standard board can hire you also, and accounting standard board formulate all the accounting standard for Indian companies. हमेशा इंडियन कंपनीज के लिए बनाती है। और कैसे बनाती है? वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, जो रिपोर्टिंग्स होती है, IFRS होते हैं, उसको देखते हैं, क्योंकि इंडिया इतना एडवांस नहीं है। फॉरेन जो कंट्री, जो इंटरनेशनली फॉरेन कंट्री एडवांस होती है, वहाँ पहले स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं। उन स्टैंडर्ड को देख के इंडियन सिनेरियो के अंदर किस तरह से चेंजेस होते हैं, उसके बेस पे वो स्टैंडर्ड बनाते हैं। और उनका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है हमारा AASB है, उसका क्या फंक्शन है? वो सबसे पहले एरियाज निकालती है, सब्जेक्ट निकालती है जिस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना जरूरी है। वो ये पहले सब्जेक्ट निकालेगी। उसने देखा कि हमारे जो इस तरह का जब भी चल रहा है, सिनेरियो चल रहा है इस टाइप की, हमारा जो इन्वायरमेंट चल रहा है, या इस तरह के हमारे जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं और हमारी इकोनॉमी ऐसी है, उसके हिसाब से किस किस एरियाज़ में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने की ज़रूरत है। जैसे फॉरेन कन्वर्टेबल एक्सचेंज पे इन्होंने एक बार बनाया था स्टैंडर्ड, तो वो नया उस टाइम आया था कि तब इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट हुआ था 1991 में। एक मतलब ग्लोबल, एक तरह ग्लोबलाइजेशन कर दिया था, मतलब बिल्कुल फ्री ट्रेड कर दिया था। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, उस टाइम की बात आई है। तो उस फॉर्मुलेट
सच रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स अकॉर्डिंग द प्रिस्क्राइब्ड। कुछ प्रोसीजर फॉलो करते हुए मैं बताऊंगा आपको कि प्रोसीजर क्या फॉलो करते हैं। और बनाने के बाद ये नहीं कि बना के रुक जाए, यहाँ पे वो रिव्यू करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक बार बन जाए उसका रिव्यू करना जरूरी, क्योंकि 5 साल 10 साल 15 साल के बाद तो रिव्यू करना जरूरी है। वो रेगुलर इंटरव्यू में रिव्यू करते हैं, इफ़ नेसेसरी दे रिवाइज इट, सम मॉडिफिकेशन कर देते हैं उसके अंदर। और क्या होता है, अकाउंटिंग को किसी को समझ नहीं आता और इंटरवेंशन प्रोवाइड करते हैं, कुछ गाइडेंस नोट्स बनाते हैं उसमें उसके लिए कि उसको फॉलो करें। ये ASB का काम है, मतलब वो इस तरह से काम करती है। लेकिन प्रोसीजर कैसा है, किस तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर क्या होता है, पहले ASB देखेगी किस एरियाज पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना है, उसकी फॉर्मेशन करना है, और अगर एक तरह से डिटरमाइन कर लिया, एक एरिया फोकस कर लिया कि इस एरिया पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं, तो वो क्या करती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करती है, मतलब एक स्टडी ग्रुप्स कर लेती है, पैनल बना देती है टू डिस्कस एंड स्टडी ऑफ द सेम सब्जेक्ट, एंड सच पैनल विल प्रिपेयर, सच स्टडी ग्रुप्स एंड सच पैनल विल प्रिपेयर ए ड्राफ्ट ऑफ द स्टैंडर्ड। और जो प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट होता है, that is circulated to all concerned authority, which includes the member of ICI also, other authority like SEBI, RBI, Department of Company Affairs, CBDT, and Standing Conference of Public Enterprises, C&AG, and they invited comments from them, comments and their opinion, from these wise people, and this exposure draft is then finalized, उनके कमेंट्स के बाद फाइनलाइज होता है, एंड इट वाज in fact it is presented to the public for their review and comments, और रिव्यू कमेंट के लिए प्रेजेंट होता है। और उसके बाद रिव्यू कमेंट के प्रेजेंट होने के बाद जो कमेंट्स जो आते हैं उसके अंदर, उस कमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं और फाइनल ड्राफ्ट उसको बना देते हैं। इन कमेंट सारे इनकॉर्पोरेट नहीं करते, जो कमेंट मतलब रीजनेबल एंड जो लगता है कि हाँ दीज आर रीजनेबल कमेंट एंड इट शुड बी इनकॉर्पोरेट इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो वो इनकॉर्पोरेट करते हैं। उसके बाद वो ICI को दे देते हैं कंसिडरेशन के लिए, आप रिव्यू करो कंसिडर करो। ICI उसको रिव्यू करती है, कंसिडर करती है और जो फाइनल ड्राफ्ट देती है। लेकिन फाइनल ड्राफ्ट देने से पहले वो उसमें कुछ अमेंडमेंट भी प्रपोज कर सकती है। उसके बाद वो फाइनल ड्राफ्ट बनता है और फाइनल ड्राफ्ट ICI इशू कर देता है फॉर कंप्लायंस। ICI विल इशू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर कंप्लायंस अक्रॉस द कंपनी। इंडियन कंपनी के लिए कंपलसरी हो जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कंपलसरी है। अगर आपने देखा होगा कंपनीज एक्ट पढ़ा है तो उसके अंदर बोले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस कंपलसरी है। इवन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी ये कंपलसरी कर रखा है कि इन कंपनीज में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं करते हैं तो कंपनीज की ज़्यादा पेनल्टीज़ भी लगती हैं, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी अपनी नटशेल में हमने क्या पढ़ा, हमारे एक इंस्टीट्यूट है जो प्रीमियम बॉडी ऑफ द अकाउंटेंसी है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसके अंदर एक बॉडी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या काम करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के लिए वो क्या करता है, ASB का काम क्या होता है, अकाउंटिंग खाली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का ही काम नहीं होता उसका। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती है, उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करती है और टाइम टू टाइम उस पर गाइडेंस नोट निकालती है, ये काम भी होता है उसका। और एक प्रोसेस क्या है, किस तरह से बनता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो मैंने आपको बताया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के पहले, क्योंकि जो IRF इसको स्टडी करती है, मतलब फॉरेन के जो होते हैं इंटरनेशनली जो IFR होते हैं, इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम होता है जो, वो स्टडी करती है और इंडियन सिनेरियो के अंदर उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करती है। और बनाने से पहले वो क्या करती है, वो स्टडी ग्रुप बना देती है, वो पैनल्स बना देती हैं, वो स्टडी करती हैं उसमें कमेंट्स देते हैं और उसके बाद एक कुछ प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट देते हैं। वो जो प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट होता है उन जो वाइज स्कॉलर्स का जो होता है, वो हम कमेंट्स के लिए भेज देते हैं वेरियस मतलब वाइज अथॉरिटीज़ को, जैसे RBI, मतलब SEBI एंड ASSOCHAM, मतलब ये इस तरह से मतलब इनको सबको भेज देते हैं कमेंट्स के लिए। प्रॉपरली कमेंट्स आ जाते हैं। कमेंट्स आने के बाद क्या करती है,
वो कमेंट्स आने के बाद ASB क्या करती है, वो उसको दे देती है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट को रिव्यू करने के लिए। तो ICAI क्या करती है, उसको रिव्यू करती है, कुछ मॉडिफिकेशन सजेस्ट करती है। कुछ मॉडिफिकेशन सजेस्ट करने के बाद वो स्टैंडर्ड को इशू कर देती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो मैंडेटरी हो जाता है फॉर ऑल। हो सकता है कुछ टाइम के लिए वो मैंडेटरी नहीं रखती, लिखते हैं कि आफ्टर 2 years इट विल बिकम मैंडेटरी। टिल देन इट इज़ ओनली फॉर suggestive nature, it is of suggestive nature, it is not mandated, it is recommended only। रिकमेंडेशन के तौर पे उसको देते कि आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं। और अभी मैं जब बोलते अगर टाइम दे देते 2 साल बाद ये मैंडेटरी हो जाएगा या 1 साल बाद मैंडेटरी हो जाएगा। इस तरह से हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फॉर्मेशन होती है। और आपका इसको पता होना ज़रूरी था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते कैसे, क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसकी क्यों ज़रूरत है और उसे बनाने से फ़ायदा क्या होता है, ताकि कि जो अक्रॉस द कंपनीज एंड अक्रॉस द इंडस्ट्रीज जो बुक्स ऑफ अकाउंट बन सकें, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन सकें, वो उसमें कंपेरेबिलिटी हो, वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे बनाई हो, कॉमन प्रैक्टिस को फॉलो करके बनाई हो, ये बहुत ज़रूरी होती है। और इस तरह से मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बता दिया। और कुछ हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेवलपमेंट के बारे में, किस तरह से बनता है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, एक तो मैंने आपको डिस्कस ही किया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसी। उसमें बताया था सब अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो करनी चाहिए, मतलब सिमिलर अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए। अगर आप डाइवर्ट करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी में तो आप उसको डिस्क्लोज देना चाहिए नोट्स टू अकाउंट में। ये सब हमने पहले डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही, हम आपसे बाद में मिलेंगे। तो हम जनरल एंट्री की क्लास लेके आएंगे। जनरल एंट्री की जो हम डिफ़िकल्ट जनरल एंट्री होंगी वो सारी हम इसके अंदर कवर करेंगे। डिफ़िकल्ट जनरल एंट्री को हम कवर करते हुए हम ये आपको बनाएंगे। तब तक के लिए बाय। एंड मैं चाहता हूँ कि आप जितनी भी क्लासेस हैं उसको ध्यान से देख लें, क्योंकि सारी क्लासेस जो मैंने 5-6 क्लास जो आपने दी हैं वो इम्पोर्टेंट क्लासेस दी हुई हैं। अब आप देख रहे हैं कि इनकी ये हमारे दीज आर द बेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन, दीज आर द बेस। अगर हम ये बेस हमारा पक्का होगा तो हम आगे बहुत अच्छा काम करेंगे। तो बेस आपका फाइनल होना चाहिए। और आपका रिस्पांस में बहुत अच्छा आ रहा है अभी, और आपके रिव्यूज़, आपके कमेंट्स से मैं ज़्यादा मोटिवेटेड भी हो रहा हूँ। आई एम रियली गेटिंग वेरी मोटिवेटेड by your comments and by your likes. So keep liking me and keep subscribing me, and just inform to your friends who are in need of such guidance. Please do subscribe my channel. Thank you very much.